آج ویو 360 میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے جرگے کی روایت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، دیکھیے ہماری اسپیشل سیریز جس کا نام ہے شمالی وزیرستان سے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب سے متعلق جائزوں میں سامنے آنے والے اعداد و شمار نومبر کے الیکشنز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور کورونا وائرس کی وجہ سے آرٹ گیلریز کی بندش کے بعد آرٹسٹ اپنے کام کی نمائش کیسے کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایک عرصے سے بدامنی اور جنگ سے متاثرہ شمالی وزیرستان کے علاقے کے باسیوں کو فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد یہاں بڑی تبدیلیوں کی امید تھی۔ یہ امید کس حد تک پوری ہوئی، یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کے عمر فاروق نے شمالی وزیرستان کا سفر کیا۔ ان کی تیار کی ہوئی رپورٹس اس پورے ہفتے ہر روز آپ دیکھ سکیں گے ہماری اسپیشل سیریز جس کا نام ہے شمالی وزیرستان سے۔ اس سیریز کی آج کی کہانی پشتون ثقافت کی اس روایت کے بارے میں ہے جہاں اکثریتی فیصلے جرگوں میں کیے جاتے تھے۔ سابقہ قبائلی علاقوں میں موجود پرانا قانون یعنی FCR بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ تاہم قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب جرگے کا مستقبل کیا ہوگا اور اس وقت یہاں کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ جرگہ کسی ذاتی یا اجتماعی مسئلے کو باہمی طور پر افہام و تفہیم سے حل کرنے کا ایک نام ہے۔ پشتون معاشرے میں صدیوں سے یہ نظام موجود ہے۔ قبائلی علاقوں میں FCR کے دور میں باقاعدہ عدالتیں نہ ہونے کے باعث جرگہ ہی عدالتی نظام کا نعم البدل تھا۔ تاہم صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب بھی قبائلی اضلاع میں لوگ جرگوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ملک نثار علی خان شمالی وزیرستان میں جرگہ کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام پر اب بھی انحصار کی وجہ یہاں عدالتی اور پولیس نظام کی آمد کی سست رفتار ہے۔ قبائلی اضلاع ہے ہمارے پورے شمالی وزیرستان میں 2 وکیل ہے، 2 وہ کس کی وکالت کریں گے؟ لہٰذا نہ وہاں پہ وکالت وکیل کی سسٹم ابھی ہے اور نہ ہمارے شمالی وزیرستان میں عدالت کے لیے جو بلڈنگ بنایا گیا ہے نہ کوئی سسٹم ابھی ہے۔ لہٰذا اکثر لوگ اپنی مسائل کو جرگے کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ FCR قانون کے تحت قبائلی ایجنسیوں میں فرد واحد کے عمل کی سزا اس کے پورے قبیلے یا خاندان کو دی جاتی تھی۔ اس قانون کو اجتماعی ذمہ داری کہا جاتا تھا۔ جرگہ اب بھی اسی اصول کے تحت سزائیں دیتا ہے۔ اس طریقہ کار پر اگرچہ تنقید کی جاتی ہے لیکن ملک نثار علی خان کہتے ہیں کہ اس سے جرگے کے لیے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ممکن ہو جاتا ہے۔ نہیں، اب ہمارا جو جوائنٹ سسٹم ہے ہمارا، بس یہ ہم جب آپ ہمارے بھائیوں کو ہمارے رشتہ داروں کو تنگ کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم اتنا جرم اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے لہٰذا اس بات کو ہم نے مان۔ KP میں انضمام کے بعد شمالی وزیرستان میں پولیس کا نظام رائج کر دیا گیا ہے، لیکن 4000 اہلکاروں پر مشتمل پولیس فورس کے اکثر نوجوان غیر تربیت یافتہ ہیں، جبکہ 5 منظور شدہ پولیس اسٹیشن میں اب تک صرف 3 قائم کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نظام کے آنے کے بعد جرگوں کی طرف سے اجتماعی سزاؤں کے فیصلوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے میں جو پولیس کے آنے سے پہلے یہاں پہ جب کوئی گاؤں میں کوئی مجرم ہو کرتا تھا تو پھر ان کے جو ہوتے تھے نا کیا نام ہے گھر ان کی شمس مار کرتے تھے، تو ابھی ایسا کوئی بھی واقع نہیں ہوا ہے۔ جب سے پولیس آئے ہوئے ایسا کوئی بھی واقعہ پہ پیش نہیں ہوا ہے۔ علاقے کی ترقی اور دیگر مسائل پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم یوتھ آف وزیرستان کے صدر اسد اللہ کا کہنا ہے کہ جرگہ کی روایات فوری ختم نہیں کی جا سکتی لیکن اسے موجودہ دور سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی ہے اور ابھی بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی اضلاع میں بھی DRCs ہے تو بے شک قبائلی اضلاع میں جرگہ کے نظام کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ DRC یعنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل خیبر پختونخوا میں سرکاری سطح پر تنازعات کو عدالت سے باہر فریقین کی باہمی رضامندی سے حل کرنے کا ایک نظام ہے۔ اس میں علاقے کے معتبر افراد سمیت ریٹائرڈ جج یا وکیل شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت
18 लाख के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। ऐसे में जरगे के निज़ाम पर इन्हिसार करने वाले इसे इंसाफ की जल्द फराहमी का एक जरिया करार देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस और अदालतों की मौजूदगी में जरगे का निज़ाम बाज़ औक़ात इंसाफ के हसूल को मज़ीद पेचीदा भी बना देता है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वज़ीरिस्तान। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती एहलकारों का, सहाफ़ियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। इस वीकेंड पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पहली मर्तबा मास्क पहनकर आवाम के सामने आए। वो हफ्ते के रोज़ जब एक मिलिट्री अस्पताल के दौरे पर साबिक फौजियों से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्होंने सदारती लोगो वाला मास्क पहन रखा था। इस वक्त अमेरिका 33 लाख से ज़ायद केसेस और 1,37,000 हलाकतों के साथ दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। सदर ट्रंप पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आवाम के सामने एक मिसाल बनने की खातिर दबाव था कि वो पब्लिक में मास्क पहने, ताहम वो इसके बावजूद मास्क पहनने से गुरेज कर रहे थे। रूसी सदर पुतिन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर भी इससे पहले फेस मास्क ना पहनने पर तनकीद होती रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना बहरान की वजह से ख़वातीन और बच्चों को मुहैया की जाने वाली सेहत आमा की सहूलियात में 20% कमी के बायस उनकी अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नायरोबी में रात का वक्त है। एक हमला खातून ज़चगी के करीब है और उसे एम्बुलेंस पर हस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जब हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज किया तो घर पर ज़चगी की वजह से हमला ख़वातीन की अमवात में इजाफे के बाद डॉक्टर्स इनकी जान बचाने के लिए मुतहरिक हो गए। ज़चगी से मुतल्लिक़ केसों में इजाफा हुआ है। हर रात हमें औसतन 2 कॉलें आती हैं। यही हालात अमीर ममालिक समेत दुनिया भर में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन, 5 साल से कम उम्र बच्चों और नौजवानों के लिए सेहत आमा की सहूलतें कम हो रही हैं, जिसके असरात तबाहकुन हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों, नौमौलूद बच्चों और ख़वातीन की शरह अमवात पर असरात होंगे। ग़िज़ाई किल्लत और तशद्दुद के शिकार बच्चों, सेहत आमा तक रसाई ना रखने वाली ख़वातीन की शरह भी तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के बंद होने की वजह से तकरीबन 40 करोड़ बच्चे भूख का शिकार हैं, जबकि 1 करोड़ 30 लाख अहम टीका जात से महरूम हैं। कुछ वालिदैन बच्चों को टीके लगवाने से खौफजदा हैं और कुछ ममालिक में वैक्सीन की कमी है। खसरे और पोलियो जैसी मूजी अमराज के दोबारा फैलने का हकीकी खतरा मौजूद है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ ज़्यादती और हमल में इजाफे, जबकि सेहत आमा की सहूलियात में कमी की वजह से ज़चगी के दौरान अमवात बढ़ रही हैं। डॉक्टर निकोलस कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन से ये बहरान ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन गरीब ममालिक के हेल्थ केयर निज़ाम पर इसके असरात ख़त्म करने के लिए अमीर ममालिक को उनकी मदद करनी होगी। कैरल पीयर्सन के साथ फाइसा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में तालीमी इदारों के सामने इस वक्त 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक ये कि ख़ज़ां से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल के लिए कैंपसेस में क्लासेस के लिए स्कूल या कॉलेजेस खोले जाएं या नहीं, और दूसरा ये कि कैंपसेस में अगर क्लासेस होती हैं तो तालिब इल्मों और तदरीसी अमले की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में भी दरस व तदरीस का शोबा कोविड-19 की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान में स्कूल्स बंद हैं। निजी स्कूलों के लाखों असातिज़ा में से बहुत से बेरोज़गार हो गए हैं। स्कूल मालिकान कहते हैं कि तलबा के वालिदैन फ़ीसें अदा नहीं कर रहे तो असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से दें। कराची में असातिज़ा किन मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने अपने टीचर्स को फायर कर दिया और ये कह दिया कि आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप जो है वो जॉब ढूंढ लें। जबकि इस वक्त कहीं भी जॉब तलाश करना ऐसा है कि बहुत मुश्किल का शिकार है टीचर। फिर आप अगर रेंट पर रहते हैं तो रेंट में जो आपका मालिक मकान है उसने आपके साथ कोई भी कमी बेशी नहीं की है, वो तो 2 तारीख को आपके दरवाजे पे आ जाएगा और कहेगा कि मुझे चाहिए। और लिटरली मैं खुद भी रेंट पर रहती हूँ तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप छोड़ दीजिए या आप अगले महीने भी कितने महीने, क्योंकि पेंडेमिक का कुछ नहीं पता कि अगले 6 महीने भी हम घर में बैठेंगे या फिर हम क्या करेंगे पता नहीं। तो सोचें कि हम सरवाइव कितना अर्सा कर पाएंगे मुझे नहीं पता।
ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ جو خودکشی کے مراحل جو آج کل آپ سن رہے ہوں گے، جو سماجی اور عجیب طریقے کے مسائل ہیں، وہ ہم اس کی طرف نہ بڑھ جائیں. مجھے یہ زیادہ ڈر ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے جو اس پر گزر رہی ہے. حالات اتنے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، کئی 2 مہینے سے اسکولوں کو بند کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اور نا امیدی کی یہ حالت ہے کہ اب لوگوں نے اسکول بند کر کے کہیں کوئی اسٹال لگا لیے ہیں، کہیں کوئی دکانیں بنا لی ہیں، کہیں بریانی کا سینٹر بنا لیا ہے. وہ اساتذہ جو دفتر میں بیٹھ کر اور کلاسوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے، آج وہ بریانی کی پلیٹ لے کر ان گاہکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولز صرف بچوں کی جو حاصل ہونے والی فیس ہے، آنے والی فیس ہے، اسی پر اپنا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو بھی اطلاعات ہیں یا جو ہمارے اپنے تجربات اور مشاہدات ہیں، 10% سے زیادہ فیسیں جو ہے وہ اسکولوں میں آ ہی نہیں پا رہی ہیں، نہیں جمع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسکولوں کی عمارتوں کے کرائے، اسکولوں کی اساتذہ کی تنخواہیں، اسکولوں میں دوسرے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ ادا کرنے اب دن بدن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسکولوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. صوبائی حکومتوں کے پاس تو ظاہر ہے جو ہماری کمٹمنٹس تھیں ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی، جو ہمیں شیئر ملنا چاہیے تھا، ہمیں وہ نہیں مل سکا. تو جو ہمارے پاس وسائل دستیاب ہیں اس کے اندر ہم کووڈ سے لڑیں یا پھر ہم اس قسم کے میگا ریلیف پیکیجز دیں، وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے یہ اپیل ضرور کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے آرڈیننس ہم لے کر آئے، پھر ہم اس کو قانون بنایا کہ جتنے ملازم اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے جو ادارے ہیں ان کو تنخواہیں دیتے رہیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کئی ادارے ایسے بھی ہیں جن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ان کے پاس آمدنی نہیں ہوگی تو آگے وہ کیسے تنخواہیں ادا کریں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں یہ جو ایک مختلف مسائل آپس میں جڑ رہے ہیں اس کو کسی طرح سے حل کر سکیں. آرٹ گیلریز ان دنوں لاک ہیں، لیکن آرٹسٹ کا کام ہرگز ڈاؤن نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے باعث مصوروں کے کام کی روایتی نمائش پر تو پابندی ہے، لیکن الحمرہ آرٹ کونسل نے گھر بیٹھے آرٹسٹ کا کام قدردانوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا. لاہور کے چند نوجوان آرٹ کیوریٹرز نے بھی آن لائن پلیٹ فارمز پر 128 آرٹسٹ کے کام کی نمائش لگا دی. تفصیل جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں. لاہور میں قائم الحمرہ آرٹس کونسل کی گیلری سال بھر فن پاروں سے سجی رہتی ہے. آرٹ کے شائقین نئی نمائشوں کے منتظر رہتے ہیں. اس سال مارچ سے اگست کے دوران یہاں تقریباً 20 چھوٹی اور بڑے پیمانے کی نمائشوں کی منصوبہ بندی جاری تھی، جب کووڈ-19 کے باعث الحمرہ کے دروازے فنکاروں اور قدردانوں پر بند ہو گئے. لیکن انتظامیہ نے روایتی نمائشوں کو ورچوئل سطح پر متعارف کرانے کا سوچا اور کر دکھایا. اگر پہلے چند سینکڑوں لوگوں نے آپ کا کام دیکھنا تھا تو تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کم از کم لاکھوں لوگوں تک آپ اپنا کام پہنچا سکتے ہیں. آرٹ اینڈ کلچر کو بھی اپنا تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا، بٹ اٹ ہیز ٹو گو آن. اس نمائش میں پاکستان بھر سے تقریباً 400 نوجوان آرٹسٹوں کے 500 فن پارے پیش کیے گئے ہیں. یہ تجربہ نہ صرف گیلری انتظامیہ بلکہ آرٹسٹ اور فن پاروں کو خریدنے والوں کے لیے بھی نیا اور منفرد ثابت ہو رہا ہے. ججز کے لیے بڑا مشکل تھا جج کرنا، کیونکہ پینٹنگ کو، اسکلپچر کو، انسٹالیشن کو جب تک فزیکلی نہ دیکھ لے تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کے سائز کا نہیں پتہ لگتا. محدود سرگرمیوں کے باعث فن و ثقافت سے جڑے بیشتر افراد نے اپنے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھایا. انہیں مزید کام کرنے اور اس میں نکھار لانے کا اچھا موقع ملا، جسے منظر عام پر لانے کے مشن میں الحمرہ جیسا سرکاری ادارہ تنہا نہیں. 4 ینگ آرٹسٹ ہیرا صدیقی، ماہا اشرف، روبیلا احمد اور یومنا لاریب آرٹ کیوریٹر ہیں. آرٹسٹوں کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہنر جانتی ہیں. کووڈ-19 نے جب سب کو گھروں میں قید کر دیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اوپن کال دے دی، جس کے تحت انہیں پاکستان سمیت 12 ممالک سے 128 مصوروں کا کام موصول ہوا اور انہوں نے آرٹ انفلیکس کے نام سے آن لائن آرٹ ڈرائنگ روم سجا دیا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے ہم وہ کریٹ کریں جہاں پر آپ جس طرح کی آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں یا آپ کس طرح اظہار کریں گے، آرٹ ورک کے تھرو دنیا کو بتائیں گے کہ کوارنٹین میں آپ نے کس طرح سے فیل کیا، اپنی پروڈکٹیوٹی کو، کریٹیوٹی کو آپ کس طرح سے ظاہر کیا. جو آرٹسٹ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر ایگزیبیشن میں وہ کافی خوش تھے اور کافی اس بات کو، اس انیشیٹو کو انکریج کر رہے تھے کہ
ये चीज़ होनी चाहिए थी और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। निजी आर्ट गैलरीज इस वक्त माली नुकसान में हैं और नुमाइशें ना होने के बाइस किरायों और स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब आर्ट कौंसल्स की कोशिश है कि मुसव्विरों के बाद मौसीकारों और थिएटर से वाबस्ता लोगों के काम को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों और मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voa urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। राय आमा के जायजे किसी मखसूस वक्त के जज्बात की अक्कासी करते हैं। यही बात अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर भी सादिक आती है, जिनके इनेकाद में शायद 3-3.5 माह रह गए हैं, और ये जायजे हमें ये बताते हैं कि किस उम्मीदवार की सदारती मुहिम किस समत में जा रही है और ज़्यादा वोट जीतने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से मुतालिक जायज़ों में सामने आने वाले आदाद शुमार हमें क्या बता रहे हैं, ये जानेंगे इस रिपोर्ट से। अमेरिका में अच्छी साख रखने वाले इदारों के सियासी जायजे ये जाहिर करते हैं कि कौमी सतह पर और उन रियासतों में जहां कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है, साबिक नायब सदर जो बाइडन को सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खासी सबकत हासिल है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सर ट्रंप इस वक्त कमज़ोर हैं, उनकी पोजीशन खासी कमज़ोर है। गुज़िश्ता साल सितंबर में जो बाइडन अपनी जमात की नामजदगी के लिए 20 डेमोक्रेट उम्मीदवारों में से एक थे। उसके बावजूद फर्जी मुकाबलों में रियल क्लियर पॉलिटिक्स की जानिब से लिए गए जायजे में जो बाइडन को सदर ट्रंप पर 9.5 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। इस साल फरवरी में दोनों की मकबूलियत की शरह उस वक्त तकरीबन बराबर हो गई थी जब सदर मुआखजे की कार्रवाई से बरी हुए थे। तहम ये सब कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा से पहले की बात है। वायरस की वबा के बाद से जो बाइडन को बरतरी हासिल होना शुरू हुई, जो अब करीबन 9 पॉइंट हो चुकी है। जायजे आपको नुक्ताए आगाज के बारे में बताते हैं। वो हर उम्मीदवार को एक तरह से ये बताते हैं अभी कितने लोगों के वोट हासिल किए जा सकते हैं, और यकीनन जब इंतखाबात करीब पहुंचते हैं तो जायजे ज़्यादा से ज़्यादा पेशगोई करना शुरू कर देते हैं। जैकब रुबाश्किन इनसाइड इलेक्शन नामी इदारे के साथ बतौर रिपोर्टर और तज्ज़ियाकार मुंसलिक हैं। वो कहते हैं कि राय आमा के जायजे किसी मखसूस वक्त की एक फौरी तस्वीर पेश करते हैं और 3 नवंबर से पहले ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं जिससे लोगों की राय बदल जाए। सदारती रेस में उम्मीदवारों के दरमियान फ़र्क अक्सर दीगर इंतखाबात पर भी मुरतब होता है, जैसे कि अमरीकी सेनेट में किसी जमात की अक्सरियत है। कौमी सतह पर जो बाइडन की भारी सबकत रिपब्लिकन रियासतों में बाइडन की मामूली बढ़तरी में तब्दील हो सकती है। तो सेनेट के लिए बतौर एक डेमोक्रेट उम्मीदवार के अगर आप अपने आप ये कहें कि जो बाइडन के वोटर्स मुझे भी वोट देंगे, तो फिर ये एक दावा करने वाली बात है। जैकब कहते हैं कि जायजा एक साइंसी आला है जो कि सिर्फ उस सूरत में कारआमद है जब आपको ये इल्म हो कि इसे किस तरीके से मुरतब किया गया है। बराह रास्त फ़ोन करके राय आमा का जायज़ा लेना सर्वे का बेहतरीन तरीका ख्याल किया जाता है, और ऐसा तब होता है जब एक हकीकी इंसान एक नंबर मिलाता है और एक लिखा हुआ मतन पढ़कर जवाब पूछता है। ज़्यादातर जायज़ों में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि ये तरीक़ा कार महंगा है और इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। बराह रास्त फ़ोन करने की बजाय जायज़ा लेने वालों में कम तर मायार के तरीके भी हैं। सियासी तज्ज़ियाकार ये भी देखते हैं कि कितने लोगों की राय ली गई। कम तादाद के मानी है गलती का इम्कान ज़्यादा है। मज़ीद बरा जायज़ों में निस्फ, नस्ल, जोग्राफिया, आमदन और तालीम के दर्जे का भी एक तवाज़ुन होना चाहिए। और जैसा कि सन 2016 के इंतखाबात से पता चला, वोटर्स के रुझान में तालीम सबसे अहम उनसर था। कम तालीम याफ्ता अफराद ने सर ट्रंप को वोट दिया था और ज्यादा तालीम याफ्ता अफराद में हिलरी क्लिंटन को वोट देने का ज्यादा इम्कान था। चूँकि ज्यादातर जायज़ों में तालीम को अहमियत नहीं दी गई थी, तो मुमकिना तौर पर वो सर ट्रंप की मख्फी ताकत को नहीं देख पाए। सदर ट्रंप के हामियों से जब पूछा जाता है कि इस वक्त सदर दौड़ में पीछे हैं, तो वो सन 2016 में लिए गए जायज़ों की जानिब इशारा करते हैं। ये भी याद रहे कि अमेरिका के मुनफरिद सदारती इंतखाबी अमल में सदर का इंतखाब हर रियासत में आने वाले नताइज पर मुनहसर होता है।
हर रियासत में सदर को मुंतखब करने वालों की एक मखसूस तादाद है जिनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और जिस उम्मीदवार को भी 270 इलेक्टोरल वोट मिल जाए वो सदारत जीत जाता है। स्टीव रेडिस के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस साल के शुरू में सियाफाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में होने वाली मौत के बाद जहां नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, वहीं अमरीकी पुलिस की फंडिंग को कम या ख़त्म करने के मुतालबे ने भी ज़ोर पकड़ा। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने इस हवाले से कुछ अहम इक़दाम का ऐलान किया। अंशुमन आप्टे से जानते हैं इसकी तफसीलात क्या हैं। न्यूयॉर्क में सिटी हॉल के सामने जोशो जज्बे से भरे ये प्रोटेस्टर्स न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की फंडिंग को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये एहतजाज अमेरिका भर में जारी ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का हिस्सा है, जिसमें सियाफाम अमरीकियों के खिलाफ नस्ल परस्ती और पुलिस की ज्यादती को खत्म करने की डिमांड की जा रही है। पिछले 50 सालों में हमने देखा कि तालीम के लिए फंडिंग कम हुई, हाउसिंग और हेल्थ केयर की फंडिंग को कम किया गया और ऐसे सब प्रोग्राम्स की फंडिंग काटी गई जो हमारी कम्युनिटी को महफूज रखने और गुर्बत से दूर रखने के लिए ज़रूरी हैं। और हमने पुलिस स्टेट और पुलिसिंग के एक ऐसे निज़ाम के लिए फंडिंग में इजाफा देखा जो सियाफामों और भूरी रंगत वालों को मुजरिम बनाती और हमारे लिए नुकसानदेह है। And keeps us harmed and keeps us endangered. हाल ही में मिनियापोलिस शहर के एक सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में मौत से लोगों का गुस्सा और बढ़ा। शुरू से ही एक नस्ली तौर पर जालिमाना निज़ाम रहा है, तो तब्दीली के लिए इसे पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से दोबारा तामीर करना होगा। इस एहतजाज के नतीजे में अब न्यूयॉर्क शहर की हुकूमत ने कई तब्दीलियां लाने का ऐलान किया है। आम शहरियों को पुलिस की कार्रवाई कैमरे पे रिकॉर्ड करने की इजाजत दी गई है और पुलिस की जानिब से चोक होल्ड या मुलजिम का गला दबाने वाली तकनीक पर पाबंदी लगाई गई है। नए रिक्रूट्स की भर्ती में भी कमी लाई गई है। मेयर बिल डी ब्लासियो ने ऐलान किया है कि वो NYPD की फंडिंग में लगभग $1 बिलियन की कटौती करेंगे और बचे हुए पैसे को लोगों की समाजी भलाई के कामों में लगाएंगे। लेकिन न्यूयॉर्क के आवामी नुमाइंदे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से तहलील करने जैसे इंतहाई इक़दामात के खिलाफ हैं। मैं एक ऐसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती हूँ जहाँ बंदूक से तशद्दुद और गैंग्स की सरगर्मियों की सतह बहुत ऊंची है, तो मैं कैसे वापस जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट के बड़ों और न्यूयॉर्क के शहरियों को कहूँ कि हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं, ये कि हमें तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकाल देने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं तो ऐसा अपने इलाके के आधे वोटर्स को भी नहीं कह सकती क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते। दरहकीकत इनमें से कुछ तो पुलिस में इजाफा चाहते हैं। NYPD से मुंसलिक इमिग्रेंट कम्युनिटीज के कुछ ऑफिसर्स मानते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग आवाम और पुलिस के बीच खलीज को दूर करने का एक बेहतर तरीका है। एक तारीख पसंद की हैसियत से आप इस कम्युनिटी में काम करते हैं जिससे आपका ताल्लुक होता है, आप इन्हीं की ज़बान बोलते हैं, लिहाजा किसी जुर्म की सूरत में जब हम निशाना बनने वाले से उसकी ज़बान में बात करते हैं तो उसके लिए बात समझना ज़्यादा आसान होता है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी कल्चर के अलावा भी हम बहुत सारी जॉब में रिस्पॉन्ड करते हैं जहाँ बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, उनके हाउस होल्ड में जाते हैं। हर किसी का अपना कल्चर रहता है, तो जैसे मैं अपना कल्चर किसी गोरे या स्पेनिश को सिखाता हूँ उसी तरह मैं उनका कल्चर भी सीखता हूँ उनसे। इन रिफॉर्म्स के नकीरीन का कहना है कि ये काफ़ी कमज़ोर हैं। पुलिस यूनियन ने खबरदार किया है कि इन रिफॉर्म्स के निफाज से जराइम बढ़ सकते हैं, लेकिन सिटी काउंसिल के नुमाइंदे कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स पुलिसी में तशद्दुद और नस्ल परस्ती के रुझान को ख़त्म करने की जानिब एक अच्छा कदम है। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और हमें लिखिए कि आप कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं, और अब जब आप बाहर किसी मजबूरी की वजह से भी जाते हैं, किसी ज़रूरी काम से भी जाते हैं, तो वापस आकर कौन से ऐसे मेजर्स लेते हैं कि आपके बाकी घर वाले महफूज रह सकें। आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।